Friends, today we are going to discuss about the biological classification. So what is the meaning of classification? Classification is the scientific practice of identifying, naming and grouping of living organisms. So the branches of biology which deals with classification are called taxonomy and systematics. So we are going to study about the classification, and as you all know that it is very much important for us to understand the thing clearly. We need to classify the large number of animals and plants which is present on the earth. So first of all, Aristotle gave the idea of the classification, and he classified the plants and animals on the very simple basis. You can say the morphological characters of the plants, क्योंकि morphological characters of the plant means the characters which you can appear. So here I have made a small summary kind of thing so that you can understand. So by the help of which you can see it here, I have written that what Aristotle did at that time. Basically he divided the plant the trees, or you can say the plants, into trees, shrubs and herbs. ये तीन पार्ट्स में उसने डिवाइड किया प्लांट्स को, जितने भी प्लांट्स थे केवल बाहर से देखकर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखकर। बिल्कुल छोटे थे ही कॉल्ड देम हर्ब्स, जो थोड़े से बड़े थे ही कॉल्ड देम श्रब्स, और जो बहुत बड़े थे उनको उसने ट्री बोला। एंड एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए ही डिवाइडेड इट इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ the animals, ones in which RBC are present and another in which RBC did not present. तो उसने दो बेसिस पर ये डिवाइड कर दिया. Then came to the Linnaeus. Linnaeus has given the two kingdom system. उसने दो kingdom system दिया जिसका नाम पड़ा टू किंगडम सिस्टम. एंड अकॉर्डिंग टू विच दिस क्लासिफिकेशन ही डिवाइडेड द होल ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांटी एंड एनिमेलिया kingdoms developed at that time. तो उसने ये दो दे दिए. तो प्लांटी दैट मीन्स प्लांट्स आर देयर, सारे प्लांट्स उसमें रखे गए. एंड एनिमल्स, जिसको एनिमेलिया उसने नाम दिया, उसमें सारे एनिमल्स रखे गए. तो प्लांटी एंड एनिमेलिया जो है उसने दो नेम्स जो हैं वो प्रपोज किए कि ये नेम्स हम रखते हैं इसके. And there are certain problems in this system, that means certain drawbacks in this system. And what are these drawbacks? I have also written them, that this system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, between unicellular and multicellular, between photosynthetic and non photosynthetic. सब एक ही में उसने रख दिए. तो उसमें हमें कुछ फ़र्क जो है वो पता नहीं चलता था. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड. बट बहुत सारे और भी तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो केवल प्लांट और एनिमल्स नहीं थे, जैसे कि फंजाई हो गया या अदर एनिमल्स हो गए, वायरसेस थे, वायरियॉन्स थे, माइक्रोप्लाज्मास थे. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, बड़े सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो केवल एनिमल और प्लांट किंगडम में फिट करने से नहीं आते थे. तो क्लासिफिकेशन नीड्स लिटिल बिट मोर चेंज. तो उस समय जो क्लासिफिकेशन था उसको चेंज किया गया एंड फोकस न केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर उनको बेस्ड रखा कि केवल बाहर से देखकर हम क्लासीफाई कर दें चीज़ों को. They shifted their focus on the cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat. ये सारी चीज़ों को फिर ध्यान में रख के, इवन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनका आपस में क्या है, इन बातों को ध्यान में रख के भी उन्होंने फिर क्लासीफाई करना चीज़ों को स्टार्ट किया. क्योंकि केवल बाहर से देख के क्लासीफाई कर देना इज़ नॉट गुड थिंग ना, उसमें सारी चीज़ें तो फिर क्लियर नहीं हो पाई उनको. उसके बाद नेक्स्ट एंड जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है अभी, दैट इज़ R.H. विटकर. इन्होंने 1969 में ही प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो R.H. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया कि उसमें क्या किया जो विटकर ने जो क्लासिफिकेशन था, ही एक्चुअली गिवन दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया he has decided. तो 5 kingdom classification of Whittaker is based on the following criteria, you can say. First thing is complexity of cell structure, another is complexity of organism's body, and third is the mode of obtaining nutrition, and fourth is the phylogenetic relationship. तो उसके बेसिस पर उसने 5 kingdom system दिया. एंड 5 kingdom system में if you see in this chart, this is the 5 kingdom system. He divided into 5 kingdoms, that is Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia.
तो इन दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द सब डिवीजन आर ऑल्सो गिवन, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग इनटू इट। एंड द मेन क्राइटेरिया जो उसने ये दिया उनके बेसिस पर ये, अब अगर हम चार्ट को स्टडी करें तो यू कैन सी इट दैट फर्स्ट इज द सेल टाइप। इफ वी enlarge it you can easily see the cell type. First one is, sorry, this is the first one is cell type. And cell type means in Monera these are the prokaryotic type की cell थी, protista eukaryotic kind of cells हैं, फंजाई में भी यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स हैं, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया आपको पता है ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। देन कम टू द सेल वॉल, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड्स की बनी हुई। प्रोटिस्टा हैव present in some animals, it is some organism it is not present, and in fungi cell wall is made up of chitin. इन प्लांटी हमको सबको पता है सेलुलोज की बनी हुई होती है, एनिमल्स में सेल वॉल होती नहीं है तो एब्सेंट है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मोनेरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है, और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सभी में प्रेजेंट होती है, हम सबको पता है, तो वो सब में पाई जाती है। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल नो मोनेरा, प्रोटिस्टा ऑब्वियसली सेलुलर होंगे, एंड आफ्टर द फंजाई मल्टी सेलुलरिज्म स्टार्ट हुआ, एंड प्लांट एंड एनिमल्स में वी ऑल नो दैट टिश्यू सिस्टम इज देयर बिकॉज वी हैव स्टडीड इनटू द एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि यही तो क्राइटेरिया थे ना, तो उस क्राइटेरिया को मैं आपको बता रही हूँ कि द क्राइटेरिया ही हैज़ गिवन, यही सारे क्राइटेरिया उसने दिए थे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी कैसा है, तो उन्हीं के बेसिस पर ये सारा कुछ आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। Mode of nutrition, Monera are basically autotrophic, sometimes they are chemosynthetic, photosynthetic, heterotrophic nutrition, in which saprophytic, parasitic nutrition, all kind of nutrition is present in them. In Protista, autotrophic nutrition, that means they are photosynthesize their food, and sometimes they are heterotrophic also, that means they obtain food from other organism. फंजाई आर बेसिकली हेटरोट्रॉफिक, क्योंकि आपको पता है सब सैप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं या फिर दूसरों की बॉडी पर रहकर फंजाई लेते हैं फूड। प्लांटी हम सबको पता है ग्रीन प्लांट्स हैं तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड द एनिमल्स आर ऑलवेज हेटरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक, समटाइम्स सैप्रोफिटिक ऑल्सो, दैट मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करने वाले सैप्रोफाइट्स, एंड होलोजोइक मीन्स अपना फूड खुद लेकर के लेने वाले, है ना, जो दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। So if we look at the 5 kingdom classification to understand the issue and what are the differences between the classifications which are given by the various scientists, are that earlier classification system includes bacteria, blue green algae, fungi, mosses, ferns, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स अंडर द प्लांट्स, मतलब वो प्लांट्स के अंदर उन्होंने सबको रख दिया, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको उन्होंने बोल दिया दीज आर द प्लांट्स। बट वी ऑल नो दैट फंजाई इज़ नॉट द प्लांट, क्योंकि फंजाई में तो क्लोरोफिल होता नहीं है, वो अपना फूड नहीं बना सकती है, उसके अंदर वो सैप्रोफैट भी होती है, तो दैट मीन्स कि आप सीधा सीधा देख सकते हो कि फंजाई विल नॉट बी इन द प्लांट, तो प्लांट ग्रुप में तो वो आएगी नहीं ना फंजाई। तो द करेक्टर्स दैट unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells। अब उनसे पूछा गया कि आपने सबको एक साथ क्यों रखा है, तो दे टोल्ड दिस, कि उन्होंने कहा कि सब में सेल वॉल होती है इसलिए हमने उठा के इनको प्लांटी के अंदर रखा हुआ है। बट आपने इस जैसे भी मैंने आपको बताया कि इफ़ यू सी इट, तो दीज आर वाइडली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल दीज ऑर्गेनिज्म विच आर पुट इन टू दिस किंगडम और दिस कैटेगरी, तो सब वो बिल्कुल डिफरेंट थे एक दूसरे से, बहुत ही डिफरेंट थे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि सियानो बैक्टीरिया, दोनों को एक ही साथ में रखा हुआ है। यूकैरियोट सेल्स भी इसके अंदर पड़े हुए हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक साथ पड़े हुए हैं, जैसे कि आपका स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, दीज आर द एल्गी, ये सब उठा करके एक साथ रख दिए, चाहे वो कोई यूनिसेलुलर था चाहे वो मल्टी सेलुलर था, बस एक साथ कर दिया उन्होंने उसको। The classification, that means this classification did not differentiate between the heterotrophic group like fungi, as I told you that fungi और autotrophic green plant सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इनका तो सेल वॉल भी मिलता नहीं है, क्योंकि जो बाकी के प्लांट हैं उनमें तो सेलुलोज होता है, बट इन फंजाई द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, और इन्होंने इसको इसके साथ में रख दिया बता करके कि क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल्स होते हैं, तो दैट मीन्स सेलुलोजिक सेल वॉल तो नहीं था ये, तो वो चीज़ जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, मतलब दैट मीन्स दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट वेल प्रूव, ऐसा तो नहीं था कि ये ठीक था क्लासिफिकेशन।
तो बाद में इनको अगेन चेंज किया गया बिकॉज व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर टेकन इनटू द कंसिडरेशन द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम दैट इज किंगडम फंजाई। तो बाद में उसको किंगडम फंजाई करके उसको अलग ही कर दिया पूरा। एंड ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप टुगेदर अंडर द फाइलम मोनेरा। फिर उन्होंने मोनेरा में डाल दिया सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, दे कम्स इनटू द किंगडम मोनेरा। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने थे उनको उठा के उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन प्रोटिस्टा एंड द जो जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से दे कम्स इनटू द मोनेरा। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस थे वो उनको कुछ हद तक वो उनको दूर कर पाए। बट क्लासिफिकेशन इज़ समथिंग कि ये हमेशा एक जैसे ही नहीं होगा कि एक बार आपने क्लासीफाई कर दिया तो हमेशा वैसे ही चलता रहेगा। जैसे जैसे एडवांसमेंट होंगी आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी, दिस विल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू चेंज। हमेशा ये चेंज होता रहेगा क्लासिफिकेशन, जैसा कि होता भी आया है अब तक ग्रेजुअली। एंड दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज ऑल द टाइम, है ना। हमेशा वैसे नहीं रहता, वो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज होता है जैसे जैसे हमें चीज़ें पता चलती हैं। तो द काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर क्लासिफिकेशन विच इज़ प्रेजेंट वी आर स्टडिंग। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी बेस्ड जो है क्लासिफिकेशन होने लगा। एंड ओवर द टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic, that is evolutionary relationship। मीनिंग देयर बाई इज़ दैट जब अब हम कोशिश कर रहे हैं न्यू क्लासिफिकेशन को, तो उसमें हम केवल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दैट मीन्स एक्सटर्नल फीचर, फिजियोलॉजिकल फीचर्स मीन्स उनके अंदर कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसा उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मोड है, वो सब केवल नहीं देखते, हम उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं कि कौन किससे रिलेटेड एनिमल्स थे। तो ये ग्रेजुअली चेंज होते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। बट नाउ प्रेजेंटली कैन से करेंटली वी स्टडीड द विटकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और यही आप भी पढ़ेंगे विटकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड द किंगडम प्लांटी एनिमेलिया वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, क्योंकि अभी आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है, एनिमल किंगडम भी आप पढ़ चुके हैं। तो दैट मीन्स कि जो रेस्ट ऑफ द फाइलम्स हैं वो हमको सॉरी जो किंगडम्स हैं वो हमको पढ़ने हैं, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो these three we are going to cover in this chapter. So this is all for today. In next lecture we will discuss the kingdom Monera.